our next conversation around tariffs. It's the talk of the town indeed, but ace investor Vijay Kedia has an interesting take on it. Before we talk to him, he has a sneak peek from his latest tune on tariffs. अच्छा हुआ तुमने हमको उठाया, हमने भी सोई शक्ति को जगाया। अब हम नए रास्ते ढूंढ लेंगे, विकसित भारत का अब टाइम आया। 2047 तक जाकर भारत को नंबर 1 कंट्री बनाकर ही हम लेंगे सांस। रचना है फिर इतिहास, रचना है फिर इतिहास, रचना है फिर इतिहास। All right, the man himself joining in today on the show, Mr. Kedia. अच्छा, वो ब्लू वाले चश्मे कहाँ हैं? उसके बिना हम कैसे इंटरव्यू करेंगे? आप पहले बोलते तो मैं सारे ले आता, जितने भी थे मेरे, लाल पीले ब्लू काले सारे ले आता मैं। Sorry, next time. Yes, please. No, but let me start with the point that you have tried to convey through this song. कि भारत को इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मार्केट को तो काफी चिंता हो रही है। किधर मार्केट को चिंता हो रही है? अगर आप ठीक से अगर देखें तो ये तो जो ड्रामा है 3-4 महीने से चल रहा है, और 3-4 महीने में अगर इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो 3 महीने के से ऊंचे स्तर पर इंडेक्स है। तो मेरे को लगता नहीं है कि मार्केट को चिंता है इस चीज की, क्योंकि लोग समझ गए कि हाँ भाई ठीक है, ये ऐसे ही बोलते रहेंगे। 125% से चालू किया, 150 तक चले गए, फिर 300 में आ गए, तो फिर अभी चाइना पे तो और भी कम कर दिया। तो ये तो मेरे को नहीं लगता मार्केट को इसकी ज्यादा चिंता है। और ये पुराना नहीं है, भी नया भारत है, और सब जानते हैं कि जो मैंने गाने में लिखा है कि अब हम नए रास्ते ढूंढ लेंगे, तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, ऐसा जनता को विश्वास है। Ji, namaskar, Alex here, and your voice is sounding as good as it was the last time you sang a song. This one is special though. Would you say therefore that any opportunities that you get in the market, and quite a few opportunities now, because there is some bit of concern, there is a little bit of panic, in those opportunities you double down, and what according to you are the big opportunities? Because you're saying in the auto sales data, for example, that there are signs of rural recovery. Even in the FMCG companies, the way that they're reporting numbers, there are signs that consumption might just be picking up. So are those areas that you're looking at very closely? No, frankly speaking, let me tell you that I'm sitting on some cash, and I am looking for some opportunity. But as on today, while I'm talking to you, I am little conservative. I'm little cautious in this market, because in many pockets, valuations are not cheap. And the stocks which are actually cheaper, valuation-wise, people are not interested in buying those shares. So this market is little tricky. And I feel that this year itself, this 2025 is really is very tricky. Look at what is happening around the world. So many countries are fighting in themselves. So many plane crashes are happening. And now this tariff is happening. Every day there is a new scenario. So I am little cautious so far this year is concerned in this market. But of course, if I get really some compelling, some opportunity, if I will get, then I will invest. Otherwise, I am just sitting, you can say that, on the fence. What is the amount of cash? Sorry, I just wanted to ask, aapne kaha you're sitting on some cash. What is the extent of cash that you're sitting on, and what is the kind of opportunity you're looking for? So I will tell you, so far cash is concerned, if I include my stocks, which I never do, but I have invested in some liquid shares, because keeping cash is really is painful for me. I don't get sleep. I have said this a number of times that keeping cash is really a pain for me. But at this moment, I have little cash, and maybe the investment which I have made in liquid shares, if I include all those, then it could be somewhere around 25-30%. Wow. Okay. Mr. Kedia, good morning. Neeraj here. So, are you? Hi, Neeraj. So, when you're waiting for an opportunity, would you believe opportunities will come in individual pockets because of वो pockets में weakness है, or do you believe that because of all of this noise around us, market-wide correction और deepen हो सकता है? Correction, because now see, market is very unique, Neeraj bhai. If you will see that some stocks are trading at 60, 70, 80, 100 ka P ratio, and some stocks are available at below 10 P. So I don't know what shape this market is going to take.
एंड मेनली क्या होता है कि जब ये थोड़ा सा जो भी है बिकॉज ऑफ द यूएसए और ये ट्रम्प का और ये टैरिफ का जो अनसर्टेनिटी है, तो उसके अंदर में ये बड़ा थोड़ा मिक्स है। तो आई एम कंफ्यूज, आई वुड रादर से कि अगर मैं कंफ्यूज में, अगर कंफ्यूजन है और उसमें मैं कोई काम करूं, तो उससे अच्छा बेटर है कि मैं काम ही नहीं करूं, मैं चुपचाप बैठूं, लिक्विड शेयर्स में रखूं जो सेफ है, और वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे लेकिन वो सेफ है। और तो अभी मेरा कंफ्यूजन का स्टेट है, तो ये मैं बोलना चाहूंगा। ओके ओके। और सो ये मिस्टर केडिया, follow-up question is this, that let's assume हमें clarity ना मिले because this things the to and fro continues for a long time. Donald Trump जी तो अभी और 3 साल 3.5 साल शायद हैं, right? So if this confusion lasts, but if the markets were to come down to a particular level, valuation wise ठीक ठाक हो जाए, could that be a catalyst? मतलब मैं ये समझना चाहूँ, if confusion stays, when does Vijay Kedia turn a buyer? If the markets correct another 1,000-1,500 points or something else? तो पहला बात तो मैं आपको ट्रम्प का लेट मी टेल यू कि वॉट एवर ट्रम्प इज डूइंग, पर्सनली आई हैव वेरी लिमिटेड नॉलेज अबाउट ऑल दिस थिंग्स, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स और वॉट एवर ऑल। आई डोंट, उसको जो समझ में आ रहा है अपने कंट्री के लिए वो काम कर रहे हैं। और लेट मी टेल यू, वो खाली उनको दोष देने से क्या फायदा। आपके खुद के लीडर बोले कि यस इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी, तो फिर पहले आप अपने घर में रिफॉर्म करो ना भाई। चैरिटी बिगिंस एट होम, रिफॉर्म्स बिगिन एट होम। पहले आप अपने घर के अंदर में कीजिए। तो पहला बात तो ये जवाब है। तो मेरे को ट्रम्प से कोई ऐसे कोई वो नहीं है कि हाँ उसने ऐसा कर दिया। अरे आप खड़े हो जाओ ना भाई। आपको आप जैसे मैंने गाने में बताया है कि अच्छा हुआ तुमने हमको जगाया, फिर उठो भाई, करो तैयारी। तुम उसको बार बार दोष देने से क्या हो गया, वो उसका काम है अपनी कंट्री को चलाना। और कमिंग टू दिस मार्केट सिनेरियो, I'm not looking at the index whether it will fall 1,000 points or 1,500 points, then I will invest in this market. मेरे को खाली ये लगता है कंफ्यूजन थोड़ा सा भी अगर सेटल हो जाएगा ना, तो आई कैन बाई 10% हायर ऑल्सो। तो कंफ्यूजन का जो स्टेट है, या थोड़ा सा कभी कभी बीच का ये डर आ जाता है कि आगे क्या होगा स्टॉक मार्केट के अंदर में, अगर आगे के विजिबिलिटी नहीं होती है तो मार्केट थोड़ा सा माने ऐसा सीनरी होता है, थोड़ा पैनिक में आता है। विजिबिलिटी होनी चाहिए। बाकी हम लोगों ने कोविड भी देखा है, सब देखा है हम लोगों ने, क्या लीमन ब्रदर्स की क्राइसिस देखी है, सब रिसेशन देखा, वॉर देखा है, यूक्रेन का देखा, अभी दूसरा तीसरा चौथा सब वॉर, इतना सब हो रहे हैं, सब हम लोग देख रहे हैं। लेकिन विजिबिलिटी आ जाती है कि अच्छा ये मैटर यहाँ खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तब फिर क्लियर रास्ता मिलेगा, तब मैं इन्वेस्ट करूंगा। विजय जी, वीकेंड पे प्राइम मिनिस्टर मोदी मेड अ स्टेटमेंट एट Varanasi, I believe, yes, where he was talking about buying India or buying Indian products, and he's Swadeshi. talking about Swadeshi again, right? So in the context of so many countries globally moving towards protectionism, we're talking about a scenario where we're still waiting for that consumption boost that was supposed to come through from the income tax cuts, that could come through from the monetary policy benefit. Another rate cut may be on the cards. Are you more and more focused on the domestic focused entities? Because I know that in the past you've bought companies like Atul Auto, you bought companies like in the building materials space, where you're saying that you are betting on the India growth story. This is now going back to the 90s. How are you positioning yourself now? You have raised a very good question. Let me tell you, first of all, I would like to answer in this way. Now, it is the duty of the citizen. अभी हम लोगों का ये ड्यूटी है कि हम लोग कौन से प्रोडक्ट को यूज करें और कौन से प्रोडक्ट को यूज ना करें। ये गवर्नमेंट इम्पोज नहीं कर सकती है, मे बी बिकॉज ऑफ द WTO और आई डोंट नो व्हाटएवर पॉलिसीज आर देयर, और इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी जो भी होता है। पर लुक एट द चाइना ना, वहाँ पर कोई आपका गूगल नहीं चलता है, वहाँ पर कोई आपका यूट्यूब नहीं चलता है, कोई वहाँ पर अमेजोन नहीं चलता है। उन्होंने अपना सब उन्होंने बनाया। दिस इज द टाइम फॉर इंडिया टू मेक इट्स ओन प्रोडक्ट। Now this is the time for government to keep them। मैं अगर फाइनेंस मिनिस्टर होता तो मैं बोलता कि जितने भी इनके जो प्रोडक्ट है जो हम यूज कर रहे हैं, अगर आप इंडिया में बनाओ तो जीवन भर के लिए आपको टैक्स फ्री है, या कोई इस तरह का अब ये छोटे मोटे रिफॉर्म करने का टाइम नहीं है भाई। अब ये जो रिफॉर्म का टाइम है, ये कोई बम्बार्डिंग कोई ऐसा रिफॉर्म, रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म करने का टाइम है। तो कमाने दो, इंडस्ट्रीज को कमाते हैं, लोगों को कमाते हैं, हमको इंडिया की रक्षा करनी है हमको। तो पहला बात तो आपका जवाब ये है कि मैं तो ऐसा, मेरे को ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे बोल्ड रिफॉर्म लेकर आएंगी जो न 90 में हुए और न 2014 में हुए या न पहले कभी हुए। ये टाइम है, नहीं आता है तो हमारा दुर्भाग्य है, मेरे को ऐसा लगेगा। और कमिंग टू, सॉरी मैं भूल गया, मैं दूसरा क्वेश्चन क्या था, सॉरी।
स्टॉक्स आप ले रहे हैं विजय केडिया जी, क्या आपका फोकस apart from just using things Domestic that are level. make in India, are you looking at domestic facing stocks? That was the gist of the जैसे question. कि आपने in the past you bet on companies like Atul Auto, you bet on companies like Sera, if I'm not mistaken, right? In the building material space. So therefore, what is the next, like, and these are stocks that have proven to be big multi-baggers for you and one of the reasons for your success. So looking at the next 10, 15, 20 years, what are the stocks that you're identifying? So correct. As on today, while I'm talking to you, my focus is entirely on the domestic theme. The company which is not dependent on the USA, company which is not dependent on other countries, that is the theme that I will decide. As on today, while I'm talking to you, I may change my mind tomorrow also. तो वो एक दूसरा बात है कि आज के दिन मेरे मन में यही है कि सेफ यही रहेगा कि हम इंडिया सेंट्रिक स्टोरी को ढूंढें और उस पर हम काम करें. Having said that, विजय केडिया जी, प्रॉफिटेबिलिटी और परफॉर्मेंस की भी बात है. जिस तरह के आपने रिजल्ट्स देखे हैं अभी तक, ऑलमोस्ट 50% इज डन. क्या डिसअपॉइंटमेंट है या इज दिस बेटर देन व्हाट यू हैड एक्सपेक्टेड? नहीं, मेरे को लगता मिक्स है इसके अंदर. मैंने तो कोई डिसअपॉइंटमेंट है ना, कोई इसके अंदर में एक्साइटमेंट है. अभी क्या होता है ना कि जब आपका तबीयत खराब होती है ना, तो आपको अगर मैं रसगुल्ला भी आप खिलाऊंगा ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बराबर है. तो ये मार्केट का जो सेंटीमेंट है ना, वो थोड़ा सा ग्लूमी है. लोगों के मन में डर है, ऐसा मैं समझता हूँ कि क्या होने वाला है, आगे क्या होएगा. FIIs भी देखिए, आप देख रहे हैं कि वो लगातार बेचते जा रहे हैं. तो ये थोड़ा क्लियरिटी जब तक नहीं आती ना, क्लियरिटी आने से थोड़ा सा रिजल्ट अगर थोड़े से सबस्टैंडर्ड भी होते हैं ना, तो भी मार्केट उसको इग्नोर कर देता कि आगे अच्छा है. और अच्छे रिजल्ट भी आते हैं, और आगे अगर थोड़ा सा विजिबिलिटी नहीं रहती, लोग सोचते हैं अरे मालूम नहीं, ये तो रिजल्ट अच्छा है, आगे क्या आएगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट में ये क्लैरिटी, तो उसकी अभी थोड़ी कमी है. तो इस बोलकर रिजल्ट का उतना महत्व नहीं, ऐसा मेरे को लगता है. और ऑलरेडी हम लोगों ने 3-4 साल इतना बड़ा बूम देखा भाई, 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना शेयर हो गए हैं. थोड़ा सुस्ताओ ना, क्या मैराथन दौड़ रहे हैं भाई. हर समय थोड़ी ना 120 किलोमीटर की स्पीड से जाने गया. कभी 40 की स्पीड पे आ जाओ, कभी रुक जाओ, थोड़ा पानी पी लो, उसके बाद आगे बढ़ो. समय से चल रहा है विजय केडिया जी, आप सही बात बोल रहे हैं, बट दिस इज, ये जो तबीयत खराब वाली बात है, ये काफी समय से चल रहा है. डू यू थिंक वी आर ऑन द वे टू हीलिंग इन टर्म्स ऑफ सेंटिमेंट? मेरे को लगता है ये साल ऐसा ही जाएगा. इस साल के थोड़े ग्रहों के भी अलाइनमेंट ऐसे ही है. आप ये समझिए. तो इस बोल कर मेरे को लगता है ये साल ऐसे निकल जाए 2025, तो फिर ये तो फिर ठीक है ना. ये तो फिर धूप और छांव का खेल है ना. ये तो प्रकृति ऐसी चलती है. आप डू यू लुक एट एस्ट्रोलॉजी व्हाइल यू आर चूजिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस? क्योंकि आपने ग्रहों की बात कही. नहीं, ग्रह माने ये एक जनरल भाषा की, बोलचाल की भाषा में बात करते हैं. मैं जीरो एस्ट्रोलॉजी है मैं समझता हूँ ना, मैं बिलीव करता हूँ, और कुछ नहीं देखता हूँ. सूर्य चंद्रमा देखते रहता हूँ खाली मैं, कि सूरज हो गया, चंद्रमा आ गया, खाली और देखता हूँ, और कुछ नहीं. आकाश में मतलब. हाँ. तो मेरा सवाल ये है, okay, so just so that our viewers know that in the past Vijay Kedia has also had to wait for things to turn around. In your experience, what is the longest that you have waited for a story to turn around? And can you tell us about that story, if at all? No, so I'll tell you, I had never been in cash. I had never been in so much of cash in my entire investing career. This is the very first time that I am having so much of cash. And cash means what I'm talking, as I said, that I have invested in some liquid shares which I can sell maybe in 2 days or 3 days and all. It is not like mid cap or small cap which are illiquid. Okay, all these stocks wherever I have invested, I think they are in F&O also. So that means I can sell them at any given point. So this I have never done in my life. That does not mean that my vision or my views for India has entirely changed. It is not like that. So maybe आप थोड़ा जैसे आप आगे बढ़ते हो, कुछ अपना पॉलिसी चेंज करते हो, but this is temporary because it is every day. Let me tell you, I am worried कि why I am keeping so much of cash. But when I look at the face of USA प्रेसिडेंट का, जब मैं उनका जब को सुनता हूँ तो मेरे को लगता है ठीक है, अभी थोड़ा कैश में रहो. So I have never done this. This is the first time that I am so much in cash. Yeah, you know, Vijay Kedia is an institution unto himself. So we can safely say that institutional investors are sitting on cash right now. After looking at President Donald Trump's face. Trump ji ka chehra dekhkar, he's decided to stay on cash. No, but Vijay ji, I kind of circle back, right? कि आपके लिए जो catalyst ढूंढना है, वो कोई तो होगा. मैंने निफ्टी का लेवल इसलिए बोला because that is the easiest to predict. I'm sure you go bottoms up, right? So would the catalyst for change come भाव से आएगा, या आपको अभी फिलहाल पता नहीं कि वो catalyst for the change for Vijay Kedia to start buying कहाँ से आएगा? You don't have clarity there right now.
वो हाँ, वो भाव से नहीं आएगा। भाव तो ओके हर समय, जैसा आई हैव सेड मैनी टाइम्स दैट स्टॉक मार्केट में हर समय कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इट इज लाइक, इट इज वो सनराइज के जैसे है। कहीं ना कहीं दुनिया पृथ्वी पे आपको सनराइज मिलेगा। अगर यहाँ नहीं है तो इंग्लैंड में नहीं है तो यहाँ है। वो स्टॉक मार्केट का थ्योरी है कि कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन अभी अपॉर्चुनिटी की उतनी परवाह नहीं है, जितनी परवाह मेरे को है कि ये थोड़ा सा सेंटिमेंट थोड़ा सा सुधरे। और तो वो है। So what is the kind of investment you are looking at? अब से जब विजय केडिया अपना cash deploy करेंगे, and you're saying this is the largest you've sat on since you started your investing journey. That's quite a big statement. What are the kind of opportunities you're looking for? So currently, let me tell you, now I remember कि अभी मैं currently I'm looking for opportunity in startups. I have already invested in maybe some 20 or 22 startups. Okay, so I'm looking at the opportunity at वहाँ पर startup में मैं खोज रहा हूँ कि वहाँ पर मेरे को कोई अगर कंपनी मिले। और वो मैं एक्सटेंसिवली, ये भूल गया था आपको बताना, वो एक्सटेंसिवली मैं खोज रहा हूँ और मैं मिलते जुलते रहता हूँ जो स्टार्टअप वाले हैं। तो मेरा थोड़ा सा फोकस उधर है। देखो मेरे को क्या है ना, बहुत सी जंगल के जैसे है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, हाथी दौड़ता है, उसकी एक रफ्तार होती है कि सपोज वो 20 किलोमीटर से दौड़ता होगा। और सपोज अगर हिरन दौड़ता होगा तो वो 120 में दौड़ता होगा। चीता दौड़ता है समझ 160 किलोमीटर से दौड़ता है, कोई भी एक एग्जांपल के लिए। तो हमको स्टॉक मार्केट में इतने सारे में हमको तो चीता ढूंढने का ना भाई, जो जल्दी से फास्ट दौड़े, ज्यादा दौड़े, जिसमें फुर्ती हो। तो वो ये जो मकसद है खाली यही है। कैश रखने का भी जो या लिक्विड शेयर में रखने का भी मकसद यही है, आई हैव टू फाइंड ए चीता। ओके, तो मेरे को अभी लिस्टेड स्पेस में ऐसा चीता नहीं दिखाई देता है मेरे को। तो मेरे को वो दिखाई देता है शायद उसमें स्टार्टअप कुछ के अंदर में हो सकता है। विजय केडिया जी, जो लिस्टेड स्पेस में चीता नहीं दिख रहा है, प्राइमरी मार्केट में चीता दिख रहा है। ये तो वी आर इन द आईपीओ सीजन। हाँ, आईपीओ में मैं इन्वेस्ट जनरली मैं नहीं करता हूँ। अभी तक मेरे को याद नहीं है शायद मैं किसी आईपीओ में, क्योंकि आईपीओ वाले पूरा जूस निकाल लेते हैं। जब आईपीओ आता है ना, तो मर्चेंट बैंकर और सब प्रोमोटर मिलकर पूरा जूस निकाल लेते हैं उसमें, तो अपने हाथ में कुछ आता नहीं है। और आईपीओ उनके लिए भी ठीक है जो अभी लिया, लिस्टिंग के बाद बेच दिया, 3 महीने बाद बेच दिया, आई डोंट नो। तो मैं आईपीओ में नहीं करता हूँ। मैं उसके इनिशियल स्टेज में करता हूँ कि उसको ये लोग जो अपनी भाषा में बोलते हैं, ज्यादातर तो अभी तक मैंने जो किए हैं वो सीड फंडिंग किए हैं। उसमें लेकिन छोटा सा इन्वेस्ट होता है। तो फिर वो सीरीज ए वगैरह, एक मैंने सीरीज ए में भी किया है। तो मैं आजकल उधर वो डीप टेक जो भी टेक्नोलॉजी, देखिए वो अपने को अब नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मैं स्टील और सीमेंट में इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, उसमें मेरा पैसा कोई मल्टीप्लाई नहीं होने वाला है। अभी मेरे को टेक्नोलॉजी के अंदर में मेरे को इंटरेस्ट है। और ये 20-22 जो भी कंपनियों में किया, मेरे ख्याल से उसमें 95% या 90% सब ये टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, जो मैं समझता नहीं हूँ लेकिन एक कॉन्सेप्ट समझता हूँ खाली। बाकी तो लिटिगेली तो मैं समझता नहीं हूँ, तो मैं थोड़ा कॉशियस हूँ। तो उसमें मेरा ध्यान है, इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मैं उसको खोज रहा हूँ, एवरी डे मैं खोज रहा हूँ कि कई बहुत इनिशिएट बने, एडवांस स्टेज पे भी है। Open call here for innovators. Vijay Kedia has put on his hat as angel investor now, and that's a new avatar. आपको before we let you go, Kedia ji, आपको we want a live demo of the song. वो तो हमने चला दे आपका LinkedIn वाला, but we have to hear something for our viewers. अरे पिक्चर अभी भी बाकी है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, always. This is वो closing credits वाला song. वही वाला नहीं, जो आपकी मर्जी। whatever you're working on, maybe अभी you're तो working on वही है something. यार। अच्छा, तो तो वही चलो वाला ये सुना चलेगा, तो। वही वाला। तो अच्छा हुआ तुमने हमको उठाया, हमने भी सोई शक्ति को जगाया। अब हम नए रास्ते ढूंढ लेंगे, विकसित भारत का अब टाइम आया। 2047 तक जाकर भारत को नंबर 1 कंट्री बनाकर ही हम लेंगे सांस। रचना है फिर इतिहास, रचना है फिर इतिहास, रचना है फिर इतिहास। क्या बात है, Wow, क्या बात है, that wow, was superb. bravo. Thank you. You know, thank you so much, Vijay Kedia ji. Always a pleasure to speak with you, and thank you for your time for us and that jazba that has come in, that this is an opportunity we should see.